कहीं कहीं से आता था रिप्लाई, कोई कोई रेफर कर भी देता था, बट कभी लिंक आया, कभी टेस्ट लिंक नहीं आया, तो ये चलता रहता था कि उन्होंने कहा कि लास्ट के 10 मिनट्स पड़े हैं और उन्होंने एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन दे दिया कि आपको अब लिंक लिस्ट का क्वेश्चन कोड करना है। It's not a game, it's a rich thing. Thank you, Bhavay, for accepting my invite for this particular session. And I'm sure this session will help a lot of students because you had a great journey getting a big company. And so let's get started from a bit of introduction from you. So, Yes, sure, Kaushal. My name is Bhavay Bangia, and I am a final year BTech student from the Guru Gobind Singh Indraprasth University and ADGITM College, New Delhi. And I recently grabbed an offer from ByteDance. was this opportunity off campus or on campus? It was an off-campus opportunity. I applied through CodeChef January Cook-Off Challenge. Okay, so it is completely a different scenario, not via hackathon, not via LinkedIn, but via CodeChef cook-off challenge. So Yes. मेरे को भी ये confusion था कि उसके थ्रू एक्चुअली जॉब मिलती भी है या नहीं, या सिर्फ प्रमोशन ही चल रहा है, बट एक्चुअल में you got a job from that. That's really great. Yeah. Okay, so Yeah. can you please elaborate something about the company, what ByteDance do? Basically, ByteDance is a parent company of TikTok. As I think सबको पता ही होगा TikTok कौन सी कंपनी है and क्या करती है. So basically, Okay, great. So can you elaborate about the hiring process you had? So basically, CodeChef ने LinkedIn पे एक पोस्ट डाला था जनवरी में, अराउंड 20 जनवरी की, हमारे कुक ऑफ चैलेंज से ByteDance हायर करेगी, सो प्लीज कॉन्टेस्ट पे जाइए और अप्लाई कर दो. तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया. देन आई गॉट सम लिंक्स फ्रॉम द CodeChef ऑन माई मेल दैट दीज आर द ओपनिंग्स फॉर द ByteDance, यू कैन अप्लाई ऑन देयर साइट. एंड फिर मैंने कुक ऑफ में पार्ट लिया. एंड उसके बाद मुझे 2 हफ्ते बाद ऑलमोस्ट मेल आया ByteDance की तरफ से कि आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट दे दो. तो मैंने वो दिया एंड मतलब मेरे से सारे क्वेश्चन हो गए थे. देन उसके भी 1-2 हफ्ते बाद उनका देन इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया कि वी आर एक्साइटेड टू इंटरव्यू विद यू एंड लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग. तो नेक्स्ट वीक की मीटिंग शेड्यूल हुई. देन ऐसे करते करते 4 राउंड्स हुए थे टोटल बेसिकली. एंड आफ्टर दैट आई गॉट द रिजल्ट्स दैट आई एम. Okay, great. Like, how you actually, got that mail from that company? Like, have you performed pretty well in the cook-off, or like, how was your performance in that? Basically, I was able to do only two questions in the cook challenge, and then I got the mail from the ByteDance itself. Okay, so ये भी बहुत बड़ा confusion था students के दिमाग में कि आपको बहुत ज़्यादा amazing perform करना है तभी आपको mail आएगा. आप decent भी perform करते हैं तो भी आपको mail आ सकता है. और I think they are also checking the resumes and all. इसके basis पे Okay. मतलब they are selecting. Okay, so like what DSA topics were covered during your complete technical in your technical interviews, and what system design question asked? No, actually, before the interviews, they have given me a guide that what can be asked in the interviews, and we have to prepare from that itself. So उसमें basically सारे मतलब subjective topics mention थे, जैसे OS and networking and database management system, और फिर सारे algorithms के topics mention थे, जैसे graph, trees, PP and all. तो हमें उसमें से ही prepare करना था और उन्होंने पूछा भी उसी में से. वाओ, सो उन्होंने काफी ज्यादा आप लोग की हेल्प करी और रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिलेबस को. तो मैं कह सकता हूँ कि ByteDance का जो ये प्रोसीजर है, ये अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, क्लियर कर लेते हो ऑनलाइन टेस्ट, तो काफी इजी पड़ जाता है बिकॉज सिलेबस ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. कि आई गेस इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन विच आर यू अप्लाइंग. एंड अगर उसमें सिस्टम डिजाइन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको उसी गाइड में सिस्टम डिजाइन भी मतलब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा. देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. Okay. So which profile have you applied for, and what other profiles were there? Basically, I applied for backend engineer content platform, and also वहाँ पर backend engineer के बहुत सारे थे, and I think soft SWE के लिए भी था. Okay, great. So like during your technical interviews, how your projects helped you in your complete journey? Yeah, actually, in my resume there are total 3 projects which I mentioned, and they asked 2 of them in different rounds.
सो एंड वो अच्छे से पूछ रहे थे, साथ साथ क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे थे कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है आपको उसकी अच्छे से नॉलेज है या नहीं, आपको उसका फ्लो पता है कि वो कैसे वर्क कर रहा है या नहीं। सो आपको थोड़े से प्रोजेक्ट अच्छे से आने चाहिए जो आप मेंशन कर रहे हो अपने रिज्यूमे के अंदर। Okay. So according to you, like you mentioned earlier that resume also played a major role in Yeah. selecting you. So what thing according to you in your resume stand out from others? एक्चुअली मेरा जो रिज्यूमे का फॉर्मेट था वो भी एक मतलब काफी सही था। वो ओवरलीफ वाला रिज्यूमे जो मतलब है उसका फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी है। एंड देन आई हैव मेंशन 3 प्रोजेक्ट्स, internship experience, which is I was a TA at Pep Coding, and also I have mentioned the rankings as I have done almost 600 plus question on Lead Code, and I am a 3-star coder on CodeShare. Okay, great. Okay, so like how CP helped you getting this amazing opportunity, competitive programming? बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा सीपी नहीं करी है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बहुत लिमिटेड सीपी करी है, जस्ट बेसिक सीपी जो कहते हैं जिसको, कि आपने सीपी शुरू करी, बेसिक पढ़े एंड देन दैट्स ऑल। उसके बाद बेसिकली मैं कहूँगा कि जो मेजॉरिटी थी पूरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वो पूरा लीड कोड पे डिपेंड। प्लस जो हमें जैसे मैंने पेप कोडिंग से कोर्सेज किए थे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहीं से थे। Oh wow. So like according to you, how CGPA matters? How much CGPA matters? आई थिंक इट मैटर्स, मतलब थोड़ी बहुत मैटर करती है। मतलब अगर आपकी CGPA अराउंड 7.5 से ग्रेटर है या 8 से ग्रेटर है तो आई थिंक दैट्स गुड CGPA। Okay. And what resources have you used in your journey till now? Okay. सो बेसिकली जैसे मैं पेप कोडिंग का स्टूडेंट था तो मैंने वहाँ से लेवल अप और इंटरव्यू प्रेप बैच किया था जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं लीड कोड प्लस JFG के। देन उसके बाद मैंने लीड कोड के अलोन बेसिकली टोटल 600 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मेरी कोड की स्पीड भी फास्ट हुई। एंड देन उसके बाद 4 सब्जेक्टिव मैंने यूट्यूब से किया, जैसे OS फ्रॉम संचित जैन वीडियोस एंड देन फ्रॉम GFG आर्टिकल्स, प्लस नेटवर्किंग फ्रॉम गेट स्मैशर्स यूट्यूब एंड प्लस सेम GFG आर्टिकल्स। Okay, before getting an opportunity at ByteDance, you might have applied to other companies as well. So what rejections, like which rejections have you faced earlier? And yeah. Yeah, actually there is a company Josh which gives 8 LPA actually. I was rejected in the last round of that company, and I have applied various times in the Amazon. I haven't received a link from them for the test, and then I got opportunity from ByteDance and cleared that. Okay, so like according to you, getting referrals over LinkedIn is easy or tough? And like have you experienced any difficulty in getting them? Yeah, बेसिकली जैसे ही कोई जॉब ओपनिंग निकलती थी तो मैं ऐसा होता था कि फटाफट सारे उस कंपनी के एम्प्लॉयज को रिक्वेस्ट भेजो एंड देन एक मैसेज भेज दो कि आई नीड अ रेफरेंस, इफ यू फाइंड माई प्रोफाइल सूटेबल देन प्लीज रेफर मी। एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ कंपनीज, बहुत कंपनीज के लिए किया है मैंने। एंड कहीं कहीं से आता था रिप्लाई, कोई रेफर कर भी देता था, बट कभी लिंक आया कभी टेस्ट लिंक नहीं आया, तो ये चलता रहता था। बट ये मतलब बहुत अच्छा रिसोर्स है अगर आपको रेफरल लेना है तो। जैसे आज मतलब जो जूनियर्स हैं आने वाले जनरेशन के, जो अभी 4th ईयर में आएंगे या जब वो जॉब ढूंढेंगे, तो उनको अभी इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज़ की, बट उनको अवेयर होना चाहिए कि जैसे अगर कोई इंटर्नशिप निकली है, अगर आप सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर का एंड होने वाला है, आपको इंटर्नशिप चाहिए या 3rd ईयर की स्टार्टिंग है, तो आप इंटर्नशिप कैसे ले सकते हो? आप लिंक्डइन के थ्रू उस कंपनी के एम्प्लॉयज को मैसेज करो फॉर द रेफरल। एंड मतलब जैसे थोड़े बहुत बंदों को मैसेज कर दो, 10-15 बंदों को, उनमें से 3-4 का पक्का रिप्लाई आएगा और 1-2 रेफर कर भी देंगे, सो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। It was tough for third tier college, but yeah, you will get the opportunity. So what other resources have you used to apply off campus apart from LinkedIn? बेसिकली मैंने सिर्फ या तो साइट पे जाके मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता था जब मुझे लिंक्डइन की इतनी नॉलेज नहीं होती थी, बट आफ्टर दैट मैं लिंक्डइन के थ्रू पहले रेफरल मांगता था, उसके बाद ही अप्लाई करता। Okay, great. So great. Lastly, any advice for the juniors? हाँ, मतलब एक तो लीड कोड सोल्व करना शुरू कर दो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है।
क्योंकि उसमें अगर आपने काफी अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चंस कर भी लिए, एक तो आपकी लॉजिकल पावर अच्छी हो जाएगी काफी ज्यादा, एंड देन आपकी स्पीड ऑफ कोड बहुत मैटर करेगा। बिकॉज मैंने ये चीज बाइटडांस के इंटरव्यू में भी एक्सपीरियंस किया है कि उनको स्पीड चाहिए कोड की। बिकॉज एक राउंड में ऐसा Okay. हुआ था कि उन्होंने कहा कि लास्ट के 10 मिनट्स पड़े हैं और उन्होंने एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन दे दिया कि आपको अब लिंक लिस्ट का क्वेश्चन कोड करना है। उसकी पहले अप्रोच बताओ 10 मिनट्स में ही एंड देन कोड कर दो। तो स्पीड बहुत मैटर करेगी, तो वो लीड कोड से आपकी अच्छी हो जाएगी। एंड देन बाकी अगर आपको सीपी में इंटरेस्ट आता है तभी सीपी करो, अदरवाइज सीपी के बेसिक्स पढ़ो, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो यू कैन मतलब आप कंटिन्यू नहीं करो, कोई इशू नहीं है, पर लीड कोड जरूर करो। बाकी great. लिंक्डइन भी जरूर मतलब एक्सप्लोर करो, और रेफर कैसे लेना है, रेफरल थ्रू एम्प्लॉयज, वो भी एक्सप्लोर करो। ग्रेट, मुझे सच्ची बहुत मजा आया तुमसे बात करने में भव्य। काफी Thank you. ज्यादा चीजें तुमने शेयर करी अपने एक्सपीरियंस से, और आई होप ये स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करेगा। अगर आप लोग के मन में कोई भी अभी भी डाउट रह गया है तो प्लीज भव्य को आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर Yeah, सकते हैं। मैंने इनकी लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, और मेरे लिए कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू भव्य फॉर योर टाइम Thank you, एंड ऑल द Kushal, बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स अहेड। Thank you for having me here.